हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा टॉपिक वाइज ऑफ नेशनल अफेयर्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes. They are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया ने क्रोशिया के साथ मिलकर एकेडमिक रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में रिसर्च वर्क के लिए एक एमओयू साइन किया, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों ने पार्टनरशिप करी। आई रिपीट, इंडिया ने किस कंट्री के साथ, ये पूछा जाएगा क्रोशिया किस कंट्री के साथ एकेडमिक रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव के लिए इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में किस कंट्री के साथ टाई अप किया या पार्टनरशिप करी, वो है क्रोशिया। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें, इंडिया के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और क्रोशिया के क्रावनर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर ने एक एमओयू साइन किया, इन दोनों ने मिलके, ताकि ट्रेडिशनल एकेडमिक, मतलब एकेडमिक कोलैबोरेशन होता है कि उस पर रिसर्च करना। इस वर्ड का ही मतलब होता है आपका रिसर्च करना इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। According to the Ministry of Ayush, the collaboration with Croatia is a significant step towards bolstering India's ties with other countries and promoting academic research.
क्लिनिकल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज, मेडिसिनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कम्पिटेंसी बिल्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे कि यही कि आयुर्वेदा के फील्ड में और ज़्यादा बढ़ के रिसर्च करना, और ज़्यादा कहते हैं ना कि मेडिसिन का मेल जो अलग अलग केमिकल्स क्या पता किस वायरस पे या किस पर्टिकुलर डिजीज पे कैसे इफेक्ट करे, उन पे रिसर्च करना, ये सारा काम रहेगा इसका एमओयू का इनके बीच में, इंडिया एंड क्रोएशिया के बीच में जो हुआ है। एंड बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स एंड आयुर्वेदा पे ज्यादा फोकस करा जाएगा। अभी रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी योगा एंड आयुर्वेदा पे, कहां पे? कैपिटल ऑफ क्रोएशिया जाग्रेब में। जाग्रेब में जो कैपिटल है क्रोएशिया की, पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी योगा एंड आयुर्वेदा पे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की, वो थी आयुर्वेदा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। आई रिपीट, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा एक नेशन वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। इस प्रोग्राम में याद रखना, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम में बेसिकली है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑल ओवर द कंट्री। अभी तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और स्टेट्स में भी लॉन्च किया जाएगा, जैसे उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। कहां पे? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनके मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ स्पेशल एक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर ऑग्यूमेंटिंग एंड एनहेंसिंग द फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई, अ स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी। किसके लिए? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, किन के द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। CSIR के द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, एंड उसका भी डिपार्टमेंट है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीआई टैग्स की। जीआई टैग्स हमने पढ़ा होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर या किसी भी रीजन की कोई चीज फेमस है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज यहीं पे मिलती है, यहाँ की स्पेशलिटी है। जैसे हमने एक सैफरन को देखा था, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, श्रीनगर के वहां। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उगाया जाता है ना, वहां की वो एक स्पेशलिटी है सैफरन को। ऐसे ही अभी 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु स्टेट से। वो है आपकी कुरुपर कलमकारी पेंटिंग्स, कलाकुरुचि वुड कार्विंग्स एंड कन्याकुमारी क्लोव। आई रिपीट, कौन सी 3 है जीआई टैग्स जिनको मिला? तीन चीजें, कारूपुर कलमकारी पेंटिंग्स, कलाकुरुचि वुड कार्विंग्स एंड कन्याकुमारी क्लोव। इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया? विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर में है, राजस्थान में। वहां पे इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजी सक्षम। डिजी सक्षम ये एक जॉइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव है। 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, एक तो माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिजी सक्षम को लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्टर का नाम जिन्होंने इसको लॉन्च किया, भूपेंद्र यादव रहेगा। अब डिजी सक्षम क्या रहेगा, आप मुझे बताएं तो। As a move to further extend the central government's effort to support youth from rural and semi-urban areas, Union Minister Bhupendra Yadav launched DigiSaksham in collaboration with Microsoft. ये enhance करेगा youth employment opportunities को in the areas by imparting digital skills. Microsoft has also roped Aga Khan Rural Support Program India and its knowledge partner TMI E2E Academy for rolling out this इनिशिएटिव। बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, एंड उनको फिर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करा गया, डिजी सक्षम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, IFSCA ने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करा फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस हब के लिए, जो कि हेड किया जाएगा
किनके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम मल्टीपल टाइम्स इसको कवर कर चुके हैं। आई रिपीट, IFSCA ने एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करा फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंस हब, जो कि हेड किया जाएगा CK मिश्रा जी के द्वारा। अगर इससे बारे में डाटा पढ़ें, पहले तो एक जिफ्ट सिटी का बता दो, ये जिफ्ट सिटी कहाँ पे बनेगी, ये गुजरात में बनेगी। तो ये IFSC के द्वारा ये एक्सपर्ट पैनल जो बनाया गया बाय फॉर्मर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी CK मिश्रा के द्वारा इसको हेड करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग एंड एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर जिफ्ट टू एक्ट एज अ गेटवे टू मीट इंडियाज रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंड अ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म विजन रोड मैप ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम फ्यूचर में ओपन करते हैं तो उसको सस्टेनेबल बनाना है। ऐसे नहीं कि फॉसिल फ्यूल ही हम बर्न कर रहे हैं एनर्जी के लिए, सफाई के लिए, जैसे अगर हम उनको पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं उसको रिवर में ही बहा दिया, पॉल्यूशन जो हो रहा है एयर पॉल्यूशन उसको बिना टैकल करे, या मतलब बिना उसको साफ करे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे चिमनी से निकलता है धुआं, तो उसको अगर हम पहले से ही साफ कर लें उस धुएं को, तो उसमें से क्या है कि जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं वो निकल जाएंगे, वो हम उसको कैद कर लेंगे और उसका फिर उसको डिस्पोज कर देंगे। तो प्रॉपर डिस्पोजल की बात की गई है यहां पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल्स प्लान कैंपेन PPC 2021 एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड की, जो कि यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च करा गया है। याद रखना, पीपल्स प्लान कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री फॉर पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, उनके मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सबका योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। आई रिपीट, पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 का सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्रैंड सभा डैशबोर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया टाई अप विद AWS इंटेल टू बूस्ट इनोवेशन। अब हमने देखा कि कोविड के टाइम पे हमारा हेल्थ सेक्टर कितना हिला हुआ है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें बेटर टेक्नोलॉजी, उसमें बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर मेडिसिन सबका, और बेटर एक रिसर्च हो सके, इन सब को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग का ये डाटा था कि हमने किसके साथ टाई अप किया, AWS एंड इंटेल के साथ, ताकि वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे सके, प्रोवाइड कर सके, रिसर्च कर सके एंड मैनी अदर चीज, जैसे भी वो हेल्प करना चाहे। AWS क्या है, अमेजन वेब सर्विस। अमेजन वेब सर्विस क्या, क्यों टाई अप किया ये भी देखें। अगर इसके बारे में प्रॉपर डाटा देखें तो नीति आयोग ने टाई अप किया इंटेल एंड अमेजन वेब सर्विस के साथ to establish a new experience studio at नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्राउड इनोवेशन सेंटर। ये जो स्टूडियो है विल एक्ट एज अ हब फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन विद अ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नीति आयोग has set up a portal COV8 for tracking all come via missions by individual or by individual organizations। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में रहेगा, और चेयरमैन है इनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन चेंज होता रहेगा इनका, ये कोई नहीं होता कि कंटिन्यू यही रहेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो चेयरमैन बन जाएंगे नीति आयोग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत मिशन 2.0 की। ये क्या है, किसके लिए बात करते हैं, क्या इनकी विशेषता रहेगी। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का इनका एम क्या रहेगा कि हमें फ्री ऑफ गार्बेज सिटी बनानी है। जो काला पानी होता है, आप देखते हैं गंदगी का होता है, सीवेज वाटर, उसको टैकल करने के लिए वो ना हो, गार्बेज ना फैलाया जाए, तो ये स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया। ऑलराइट, और इसमें वो सारी सिटीज कवर की जाएंगी, वो सारी एरियाज कवर किए जाएंगे जो अमृत मिशन में नहीं, जो अमृत मिशन में कवर किए जाएंगे, उनके अलावा जो बचा वो सारा स्वच्छ भारत मिशन में करा जाएगा। लेकिन अमृत मिशन क्या है फिर, अमृत मिशन है कि जो सीवेज होते हैं, सेप्टिक होते हैं, जो आपकी नालियां होती हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, उनको साफ रखने के लिए, कि उनका जो पानी है, उनका सीवेज है, वो किसी भी रिवर में, जैसे हम देखते हैं गंगा में बहा देते हैं, यमुना में सारा नाले का पानी जाता है, तो उस सबको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर डेवलप प्लान बनाया गया है। उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत मिशन 2.0 इन दोनों को लॉन्च किया गया। इनका दोनों का सेकेंड एडिशन या सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
चाचा चौधरी को तो देखो सभी जानते हैं, ये एक बहुत फेमस कॉमिक कार्टून कैरेक्टर थे जो बहुत फेमस हुए थे। 19 किड्स इन सभी, मतलब सभी 19 किड्स इनको जरूर जानते होंगे, चाचा चौधरी। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो नमामि गंगे स्कीम है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये क्या है आपका, गंगा की सफाई, बेसिकली गंगा को साफ करने के लिए ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट या स्कीम लॉन्च किया गया था। गंगा नहीं, गंगा मेन रहेगा, मोटो गंगा का है, मेन गंगा को साफ करना। उसके अलावा वेरियस अदर जो आपकी रिवर्स है उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी पॉल्यूट ना किया जाए, उनको भी साफ किया जाए। ये एक नमामि गंगे का मिशन है मेन। तो इनका मोटो किनको बनाया गया, इनका मोटो बनाया गया चाचा चौधरी को। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करिएगा। इनके साथ एक चीज और, इनको पब्लिक एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि पब्लिक भी आके इनिशिएटिव ले, पब्लिक भी आके काम करे। इसी वजह से एक मोटो लॉन्च किया गया, गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये एक थीम की तरह हो गया है, मोटो है ये, गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री मनसुख मांडविया जी, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके द्वारा आई ड्रोन एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। आई ड्रोन है आपका, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आई से ICMR, DRON हो गया आपका, फिर ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। आई रिपीट, ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, ये आई ड्रोन की फुल फॉर्म रहेगी। इसमें क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में पहली बार इंडिजीनियसली बिल्ट ड्रोन को यूज करते हुए वैक्सीन की डिलीवरी की, इवन इन द रिमोट एरियाज। ठीक है, और जब ये ड्रोन्स को चलाया गया तो यहां पे आपका देखेंगे कि आप जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, IIT कानपुर एंड वेरियस अदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं जिनसे परमिशन लेनी जरूरी होती है, उन सब से परमिशन लेके ये आपका एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया, ताकि ड्रोन की हेल्प से वहां पे वैक्सीन की डिलीवरी की जा सके। ये पहली बार हुआ है कि इंडियन ड्रोन का डिलीवरी हुई है यूजिंग द ड्रोन्स डेवलप्ड इन इंडिया, इन मेक इन इंडिया के ड्रोन से इन साउथ ईस्ट एशिया में। काफी हेल्पफुल रहेगा, ये याद रखना। साउथ ईस्ट एशिया नहीं, साउथ एशिया में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, टू बी प्रिसाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी पंबन ब्रिज की। ये पंबन में एक ब्रिज बनेगा जो आपका है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंबन में एक सी ब्रिज बनेगा जिसको वर्टिकल सी ब्रिज भी बोला जाएगा। ये इंडिया का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। पूछा जाएगा कि ये किस लोकेशन में, स्टेट का नाम बता दो। तमिलनाडु में ये आपका वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। इसको हम पंबन रेलवे ब्रिज भी बोलते हैं। किस स्टेट में, तमिलनाडु में। और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रहेगा सी के ऊपर। नेक्स्ट डाटा याद रखने का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हाइक रेट्स ऑफ प्रोसीजर्स अंडर ABPMJ, ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको याद रखना, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है, ताकि हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा बढ़िया की जा सके। इसमें अभी ब्लैक फंगस आपने देखा होगा, कोविड की वजह से लोग जो रिकवर हो रहे थे उनमें ब्लैक फंगस देखा जा रहा था। तो ये आपको एक तो याद रखना, ये स्कीम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये किसके अंडर आती है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर आती है। पहली चीज, उनके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। एंड इसमें जो प्रोसीजर्स का जो रेट था वो 20% से 400% इंक्रीज कर दिया गया है। दिस रिविजन शो एन एडिशन ऑफ न्यू मेडिकल पैकेज रिलेटेड टू ब्लैक फंगस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या पता होनी चाहिए, एक तो फुल फॉर्म ABPMJAY की, इसके साथ साथ कि ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन पे लॉन्च की थी मैंने, तो बहुत अच्छे। अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसको देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया गया था, ताकि अब हम देख रहे हैं कि हर कंट्री स्पेस की भीड़ में लग गई है कि स्पेस में जाना है। इस एक कहते हैं ना, भेड़ चाल हो जाता है शुरू, और फ्यूचर भी स्पेस है। तो अब इंडिया को भी स्पेस पे कब्जा करना है, स्पेस पे एक मतलब अपना हक जमाना है, हाथ जमाना है। तो अब क्या है कि वेरियस इंडस्ट्रीज या वेरियस कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो भी आके इसरो की हेल्प करेंगी, ताकि
फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर जो मिशंस हैं, उनको और बेहतर किया जा सके एंड काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लाया जा सके फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स मिलान। ये एक नेवल एक्सरसाइज कह सकते हैं जो कि आपकी इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगी। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके नोट कीजिएगा। एक्स मिलान ये एक एक्सरसाइज होगी, फरवरी 2022 में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 46 कंट्री का पार्टिसिपेशन देखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। आपका काम है मुझे ये बता दो ये कहां पे कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, लोकेशन। मैंने कल या परसों की वीडियो में इसका आंसर दिया था, मैंने वहां पे भी डिस्कस किया है कि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मार्क जरूर करिएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि लोकेशन क्या रहेगी एक्स मिलान एक्सरसाइज की, जिसमें 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी एज वेल एज क्वाड कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेशन दिखेगा, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। एंड ये पहली बार होगा कि यूएसए विल बी इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए बताइए, प्राणी मित्र अवार्ड 2021 किसको मिला? देखो, प्राणी मित्रा 2021 का किनको मिला है? चिन्नी कृष्णा, शिनी कृष्णा जी को, जो कि को फाउंडर हैं ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के जो को फाउंडर हैं उनको प्राणी मित्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। ठीक है, प्राणी मित्रा नाम ही सजेस्ट करता है। प्राणी मित्रा क्या है कि जो लोग एनिमल्स की हेल्प करते हैं, प्राणी मित्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिसीव किया महारत्ना स्टेटस। महारत्ना स्टेटस क्या होता है? महारत्ना स्टेटस वो होता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर 15% ऑफ इट्स नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। इट एनहेंसेस पावर टू द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड वाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अब किसका स्टेटस मिल गया है? महारत्ना का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक एमओयू की, एनएचएआई एंड टीआईडीसीओ के बारे में, जिन्होंने मिलके एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की डेवलपमेंट की बात की। कहां पर? चेन्नई पोर्ट पर। ये याद रखना है, कहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात की गई है? चेन्नई में। एंड इसको बनाने की बात किन दो कंपनीज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ? वो है नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टीआईडीसीओ, जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इनके बीच में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कहां पर? चेन्नई पोर्ट लैंड में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, एक अच्छी न्यूज भी कह सकते हैं इसको बहुत, कि गुड स्मार्टियंस क्या है कि जब हम देखते हैं लोग की एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो लोग पहले हिचकते थे उनकी हेल्प करने में, पहले पास नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो हेल्प करेंगे तो पुलिस उन पे भी केस करेगी, उनसे पूछताछ होगी, इसीलिए लोग अवॉइड करते थे। लेकिन अब उसको चेंज होता देख रहे हैं हम विद टाइम। गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो लोग उनकी हेल्प करेंगे उनको पुलिस से तो बचा के रखेंगे, बट साथ साथ उनको कुछ अमाउंट कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। इवन कैश अवार्ड के साथ साथ जो लोग पूरे साल में कुछ ऐसे अवार्ड्स भी सेलेक्ट किए जाएंगे जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा ऑन द बिहाफ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है लोगों की हेल्प करके। ऑलराइट, तो ये गुड स्मार्टियन इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्कीम के अंडर अगर आप गोल्डन आवर के अंडर किसी भी विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, उनकी जान बचा लेते हैं, तो आपको 5,000 पर इंसिडेंट पर इंडिविजुअल का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी वैलिडिटी देखें तो 15 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक इसको इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है कि इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडमान के माउंट हैरियट की। अंडमान के माउंट हैरियट का नाम चेंज करके अब माउंट मणिपुर रख दिया गया है इन ऑर्डर टू ट्रिब्यूट द फ्रीडम फाइटर्स। आई रिपीट, माउंट हैरियट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? माउंट मणिपुर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। किस स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया? कहां पर आपका खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश में खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है आपका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, मार्क करिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि लार्जेस्ट पैन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम रहेगा। इस स्कीम के अंडर क्या सबको एक हमने देखा है कि इंडिया में लोग मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम कराते हैं, अपना बहुत कम ध्यान रखते हैं, हेल्थ पर बहुत कम ध्यान रखा जाता है। तो एक हेल्थ को अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए ये एक अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल हो सभी को, ये मिशन स्टार्ट करा गया। कहां पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह के द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च करा गया। ये क्या कि आप जो लोग ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से खरीद के एक ट्रेडिंग कर सकें इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं आप। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी आरके सिंह लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन डे अहेड मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टू एनेबल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू ट्रेड बाय और सेल रिन्यूएबल एनर्जी इन द डे अहेड मार्केट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को खरीद और बेच सकें, इसलिए ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर आरके सिंह के द्वारा। इन्हें इसका ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो है टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब हमने देखा था कि दिल्ली में कोल की कमी से कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो सकती है, पूरे देश में कोल की कमी की बात की गई थी। तो वो क्या फॉसिल फ्यूल है, वो तो अच्छा है कि कमी हो गई, लेकिन उस कमी को कहीं से तो कंपनसेट करना चाहिए कि किसी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उसी के लिए ये एक इनिशिएटिव ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया गया, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे एनडीपीएल हो गई, ये क्या कि खरीद बेच सकें रिन्यूएबल एनर्जी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सेकेंड फेज ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को लॉन्च किया गया। ये क्या? ये आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए या स्किल प्रोवाइड करने के लिए यूथ को, ताकि वो अब खुद एम्प्लॉय हो सकें, उनकी एम्प्लॉयमेंट मिल सके उनको। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका सेकेंड फेज था। ये अभी सेकेंड फेज ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, जो कि 2 साल के लिए 2021 से 2023। इसमें जो यूथ है 21 से 30 साल के लोग, बोथ वीमेन एंड वीमेन, इसमें अपने आके जिनको थोड़ी भी स्किल है, किसी भी चीज की नॉलेज है, यहाँ पे स्किल ले सकते हैं, किसी भी फिर फील्ड में जाके अपना वहां पे वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोंकण शक्ति की, जो कि किन कंट्री के बीच में एक्सरसाइज कराई जाती है। ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों, एंड जो कोंकण शक्ति होती है ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन की। गवर्नमेंट ने अभी एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन। निपुण भारत की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस निपुण भारत मिशन के जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये भी बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये दोनों चीज। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट बात करेंगे हम स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 की। आई रिपीट, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 की, जिसमें टॉप किया कौन सी स्टेट ने? कर्नाटका ने। एंड सेकंड पोजीशन पे कौन सी स्टेट आई? राजस्थान। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेट पोजीशन पे आता है आपका कर्नाटका इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, एंड सेकंड पोजीशन पे आता है आपका राजस्थान। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।